point we are going to learn about the Mughal tradition of succession. For a dynasty to rule for a long time, the successor should be very efficient. मतलब कोई भी डिनेस्टी पर बहुत दिनों तक रूलिंग करने के लिए जो सक्सेसर होना चाहिए वो बहुत इफ़िशियंट होना चाहिए. Mughal dynasty ruled for centuries because he had a great lineage of successor. अब इनकी जो lineage थी, here we shown that in the family tree, first was the Babur, then after that Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, and at last there was the Aurangzeb. So this is the lineage of the successors from the Mughal family. So let's learn about Mughal tradition of succession. Mughals did not follow any definite law of succession. मतलब मुगलों ने कोई ऐसा परफेक्ट लॉ सक्सेशन के लिए नहीं किया हुआ था. The Mughals did not have the primogeniture type of the succession. Primogeniture means that is called in Hindi ज्येष्ठ अधिकार. मतलब जो घर का बड़ा बेटा होता है उससे ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता है. ऐसे इनकी जो सिस्टम थी, जो लॉ था, वो ऐसे नहीं था. प्राइमोगेनिचर इज द सिस्टम वेयर द एल्डेस्ट सन बिकम्स द नेक्स्ट किंग. इसमें क्या होता है कि घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उससे क्या मिलता है, ये अधिकार मिलता है. Mughal followed custom of the coercenary. Means what? Coercenary is the system where the kingdom is divided between all the sons. अब ये एक ऐसे सिस्टम है जिसमें सभी बेटों में वो किंगडम क्या किया जाता है, समान रूप से बांटा जाता है. After the death of every emperor, there were bloody wars among emperor's son for the throne. अब मुगलों की इस सिस्टम की वजह से, मतलब समान अधिकार मिलने की सिस्टम की वजह से इनके बेटों में बहुत युद्ध होते थे. Each one used noble and members of the royal family to get a throne. अब फैमिली में से हर एक क्या करता था कि मुझे ही नोबैलिटी मिले, मुझे ही ये थ्रोन मिले, इसके लिए सभी जुटे रहते थे. These all efforts to capture the throne created anarchy among the empire. Later these nobles make compromises and made the Mughal power weak and the vulnerable. अब उनकी इस सिस्टम की वजह से उनकी जो मुग़ल पावर है वो बाद में क्या हो गई, कम हो गई. Now let's look at the some successes of Mughal dynasty. तो ऐसे मुग़ल डिनेस्टीज़ के सक्सेसर कौन से थे? बाबर, the founder of Mughal empire, defeated Afghans Rajput and control दिल्ली एंड आगरा. अब बाबर जो कौन था कि जिसने मुग़ल एम्पायर जो थी वो फाउंड की, उसकी स्थापना की और अफ़गान के जो राजपूत थे उनको हराकर दिल्ली और जो आगरा का एरिया था वो उसने कंट्रोल किया हुआ था. बाबर सन हुमायून डिवाइडेड द किंगडम as per Babur's will and gave one province each to all his brother. अब बाबर ने क्या किया, बाबर जो हुमायून का बेटा, उसने क्या किया कि जो अपना किंगडम था वो हर एक प्रोविंस में, हर एक प्रदेश में बांट दिया और उसके हर एक भाई को दे दिया. His brother मिर्ज़ा कमरान रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम. अब ये करने की वजह से उसका जो भाई था मिर्ज़ा, उसने उसके विरुद्ध रिवॉल्ट किया, विद्रोह किया. Later the son of Humayun, Akbar had to face revolt of his half brother
मिर्ज़ा हकीम। अब इसकी वजह से अकबर को अपने भाई से क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा। देन even the military campaigns were inhibited in 1579 to 80 due to the revolt of मिर्ज़ा हकीम। मतलब इस मिर्ज़ा हकीम की वजह से जो इनके मिलिट्री के अभियान थे वो रोके गए। द सक्सेसर ऑफ अकबर was Jahangir, who had to face revolt from his own son Prince Khurram in the future Emperor शाहजहां। अब जो अकबर के सक्सेसर थे कौन, जहांगीर, उन्हें क्या करना पड़ा, उनके खुद के बेटे का, खुर्रम के बेटे का उन्हें सामना करना पड़ा। द फ्यूचर एम्परर शाहजहां। लेटर शाहजहां हैड 4 sons। अब इस शाहजहां को 4 बेटे थे। हु फॉट फॉर द थ्रोन अमंग विच औरंगजेब वोन। अब इस शाहजहां के 4 बेटों में जो जीता हुआ था वो औरंगजेब था। So students, we will revise those points once again of the Mughal tradition succession. The Mughals had the Copper-Scenery type of succession. They did not believe in the primogeniture. Primogeniture is a system where the eldest son gets all the properties owned by his father. Copper-Scenery is the method followed by where all the children get equal share of their father's property. The successor of Babur was Humayun, who gave 1 province each to all his brothers as per Babur's will. So students, here you can see the chart that Humayun, Akbar, Jahangir, and how after them that their property were divided. I hope students this point you understood very well. This point we are going to learn about the Mughal tradition of succession. For a dynasty to rule for a long time, the successor should be very efficient। मतलब कोई भी डिनेस्टी पर बहुत दिनों तक रूलिंग करने के लिए जो सक्सेसर होना चाहिए वो बहुत इफ़िशियंट होना चाहिए। मुगल डिनेस्टी रूल्ड फॉर सेंचुरीज बिकॉज ही हैड अ ग्रेट लाइनेज ऑफ सक्सेसर। अब इनकी जो लाइनेज थी, हियर वी शोन दैट इन द फैमिली ट्री first was the Babur, then after that Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, and at last there was the Aurangzeb. So this is the lineage of the successors from the Mughal family. So let's learn about Mughal tradition of succession. Mughals did not follow any definite law of succession। मतलब मुगलों ने कोई ऐसा परफेक्ट लॉ सक्सेशन के लिए नहीं किया हुआ था। द मुगल्स डिड नॉट हैव द प्राइमोगनेचर टाइप ऑफ द सक्सेशन। प्राइमोगनेचर मीन्स दैट इज कॉल्ड इन हिंदी ज्येष्ठ अधिकार। मतलब जो घर का बड़ा बेटा होता है उससे ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता है। ऐसे इनकी जो सिस्टम थी, जो लॉ था, वो ऐसे नहीं था। Primogeniture is the system where the eldest son becomes the next king। इसमें क्या होता है कि घर का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उससे क्या मिलता है, ये अधिकार मिलता है। मुगल फॉलोड कस्टम ऑफ द Copper-Scenery means what? Copper-Scenery is the system where the kingdom is divided between all the sons। अब ये एक ऐसे सिस्टम है जिसमें सभी
बेटों में वो किंगडम क्या किया जाता है, समान रूप से बांटा जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ एवरी एम्परर देयर वेयर ब्लडी वॉर्स अमंग एम्परर्स सन फॉर द थ्रोन। अब मुगलों की इस सिस्टम की वजह से, मतलब समान अधिकार मिलने की सिस्टम की वजह से इनके बेटों में बहुत युद्ध होते थे। ईच वन यूज्ड नोबल एंड मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली टू गेट अ थ्रोन। अब फैमिली में से हर एक क्या करता था कि मुझे ही नोबैलिटी मिले, मुझे ही ये थ्रोन मिले, इसके लिए सभी जुटे रहते थे। These all efforts to capture the throne created anarchy among the empire. Later, these nobles make compromises and made the Mughal power weak and the vulnerable. अब उनकी इस सिस्टम की वजह से उनकी जो मुग़ल पावर है वो बाद में क्या हो गई, कम हो गई। Now let's look at the some successes of मुग़ल डिनेस्टी। तो ऐसे मुग़ल डिनेस्टीज़ के सक्सेसर कौन से थे? बाबर, द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, डिफीटेड अफगान्स राजपूत एंड कंट्रोल दिल्ली एंड आगरा। अब बाबर जो कौन था कि जिसने मुग़ल एम्पायर जो थी वो फाउंड की, उसकी स्थापना की और अफगान के जो राजपूत थे उनको हराकर दिल्ली और जो आगरा का एरिया था वो उसने कंट्रोल किया हुआ था। बाबर सन हुमायून डिवाइडेड द किंगडम एज पर बाबर्स विल एंड गेव वन प्रोविंस ईच टू ऑल हीज ब्रदर। अब बाबर ने क्या किया, बाबर जो हुमायून का बेटा, उसने क्या किया कि जो अपना किंगडम था वो हर एक प्रोविंस में, हर एक प्रदेश में बांट दिया और उसके हर एक भाई को दे दिया। हिज ब्रदर मिर्ज़ा कमरान रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम। अब ये करने की वजह से उसका जो भाई था मिर्ज़ा, उसने उसके विरुद्ध रिवॉल्ट किया, विद्रोह किया। Later, the son of Humayun, Akbar had to face revolt of his half brother मिर्ज़ा हकीम। अब इसकी वजह से अकबर को अपने भाई से क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा। Then even the military campaigns were inhibited in 1579 to 80 due to the revolt of मिर्ज़ा हकीम। मतलब इस मिर्ज़ा हकीम की वजह से जो इनके मिलिट्री के अभियान थे वो रोके गए। द सक्सेसर ऑफ अकबर वॉज जहांगीर who had to face revolt from his own son Prince Khurram in the future Emperor शाहजहां। अब जो अकबर के सक्सेसर थे कौन, जहांगीर, उन्हें क्या करना पड़ा, उनके खुद के बेटे का, खुर्रम के बेटे का उन्हें सामना करना पड़ा। द फ्यूचर एम्परर शाहजहां। लेटर शाहजहां हैड 4 sons। अब इस शाहजहां को 4 बेटे थे। who fought for the throne among which औरंगज़ेब won। अब इस शाहजहां के 4 बेटों में जो जीता हुआ था वो औरंगज़ेब था। So students, we will revise those points once again of the Mughal tradition succession. The Mughals had the coercenary type of succession. They did not believe in the primogeniture. Primogeniture is a system where the eldest son gets all the properties owned by his father. Coercenary is the method followed by where all the children get equal share
of their father's property. The successor of Babur was Humayun, who gave one province each to all his brothers as per Babur's will. So students, here you can see the chart that Humayun, Akbar, Jahangir, and how after them that their property were divided. I hope students this point you understood very well. In the next point, we are going to learn about the Mansabdars and Jagirdars under the Mughal Empire. Mughal Empire introduced many new systems in the administration. Among such a system were Mansabdars and Jagirdars that was introduced by the Akbar. अब अकबर ने बहुत सारे ऐसी सिस्टम मनसबदारी और जागीरदारी अपने रूलिंग रीजन में इंट्रोड्यूस की हुई थी. लेट्स डिस्कस अबाउट द मनसबदार एंड जागीरदार्स. With the expansion of their empire, the Mughals started recruiting different people. अब अपनी जो एरिया है वो बढ़ाते बढ़ाते उस अकबर ने क्या किया हुआ था, बाबर ने क्या किया हुआ था कि अकबर ने अपनी ये जो एक्सपांशन है वो बढ़ाते बढ़ाते उसने बहुत सारे ऐसे लोगों की रिक्रूटमेंट की हुई थी. अलॉन्ग विथ तुर्किश नोबल्स दे ऑल्सो स्टार्टेड टू रिक्रूट द ईरानियन, इंडियन, मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत एंड मराठास. तो ऐसे सारे लोगों की भर्ती उसने की हुई थी. These people who joined Mughal services were called as मनसबदार. और जो लोग ऐसी मुग़लों की सेवा, मुग़लों की ग़ुलामी या उनके पास काम करने के लिए ये जो सर्विस ज्वाइन करते हैं उन्हें मनसबदार कहा जाता था. मनसबदार मीन्स द पर्सन्स होल्डिंग अ रैंक and it was used for fixing rank, salary and military responsibility. अब इन मनसबदार लोगों को क्या किया जाता था, रैंक दी जाती थी कि सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास दी जाती थी. द सैलरी एंड रैंक वॉज डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ज़त. अब इनकी जो वैल्यू है, रैंक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़त के नाम से दी जाती थी. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मनसबदार वॉज टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और द कैलवरी मैन. कैलवरी मैन मतलब जो घुड़सवारी करने वाले लोग हैं उनके स्पेसिफिक नंबर कितने हैं ये मेंटेन करना इन मनसबदार लोगों का काम था. Mansabdar brought his cavalrymen for review, branded their horse and then received money to pay them salary. मतलब मनसबदारों को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी कि अपने घोड़ों का ब्रांड, खुद की सैलरी, ये सारी चीज़ें मिलती थी. मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड द जागिरी. अब इस मनसबदारों को जो सैलरी मिलती थी उसे जागिरी कहा जाता था. जागिर्स वेयर द लैंड विच वेयर गिवन टू द मनसबदार टू कलेक्ट रेवेन्यू. मतलब इन मनसबदारों को जो एरिया कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है वहाँ से वो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे और जो टैक्स मिलेगा वो उनकी सैलरी होती थी.
The revenue from the Jagir was collected by the servant of मनसबदार। अब मनसबदार लोगों के जो नौकर थे उनसे ये टैक्स कलेक्ट करवाया जाता था। These जागीरीज were strictly checked in अकबर्स रीजन। अब अकबर के ज़माने में ये जो जागीरी है वो बहुत स्ट्रिक्टली क्या की जाती थी, चेक की जाती थी, सो दैट द रेवेन्यू और टैक्स इज़ इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार। ये क्यों किया जाता था कि जो हर एक मनसबदार रहेगा उसे क्या मिलनी चाहिए, इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। In Aurangzeb's rule, there was a huge increase in the number of मनसबदार। अब अकबर के बाद जो औरंगज़ेब की रूलिंग थी उसमें क्या हुआ कि इन मनसबदारों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई। दिस लेड टू शॉर्टेज ऑफ जागीर्स। अब मनसबदार ज़्यादा बढ़ गए तो जो टैक्स मिलता था, जो जागीरी मिलती थी, वो इनके लिए क्या होने लगी, कम पड़ने लगी। दिस मेड जागीरदार्स टू कलेक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू अप टू व्हेन दे हैड जागीर। अब इन जागीरदारों को, उन मनसबदारों को बहुत सारा जो टैक्स है वो वसूल करना पड़ा क्योंकि उनको सैलरी ठीक तरीके से नहीं मिल रही थी। औरंगज़ेब ट्राइड टू कंट्रोल दिस बट ही फेल्ड डूइंग सो। अब औरंगज़ेब का मानना क्या था कि लोगों पर अन्याय नहीं होना चाहिए, तो उसने ये जो शुरू हुआ है उस पर कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो कर नहीं सका। So students, we will revise those points once again. Mughals recruited diverse bodies of people as their region was expanding. Beginning from Turkish nobles, they expanded to Iranis, Indians, Muslims, Afghans, Rajput and Marathas. Those joining Mughal services were known as the Mansabdars. Salary received by Mansabdars are in the form of revenue assignment called the Jagirs. This Jagir was strictly checked in Akbar's region so that their salary is roughly equal to the Mansabdars. So I hope students you understood that point very well.